Very good morning, my dear students. Today it is 10th of January 2022. My name is Vivas Tiwari and I welcome you all. We are studying your class 10th CG Board Social Science Lesson 16 Democracy and Social Movement. This is the part 3 of this lesson, and in this part we are going to study peace movements. Once again, reminder, don't read from the screen. Open your book, page number 230. Get ready with pen and paper. Use headphone, put on the headphone, and along with me, read from your book. You will get line by line Hindi interpretation of your lessons. So let's start learn something new. पीस मूवमेंट्स, शांति के लिए आंदोलन, PEACE, पीस मूवमेंट्स, शांति के लिए आंदोलन. Like the social movements that we have read about till now, several important movements for world peace have been conducted across the globe. ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं. These movements have played a key role in ending wars and establishing international peace. इन आंदोलनों ने युद्ध को रुकवाने में और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. Peace movements are usually associated with campaigns and organized attempts to stop wars, stop acts of violence during wars, and stop arms build-up by countries. आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है. The global aim of peace movements is to prohibit the use of nuclear weapons, encourage disarmament, and bring an end to war. शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रुकवाना है. Many different kinds of organizations have been established to advocate world peace. शांति आंदोलनों के तहत लोग तरह तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं. They mostly work to establish peace camps, support anti-war candidates in elections, and carry out critical studies and analysis of the security and disarmament policies of different governments. शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य हैं. Now the question is, what is the purpose of a peace movements? Explain with examples. शांति आंदोलन का क्या आशय है, उदाहरण देकर समझाइए. What steps can the people who participate in peace movement take to stop unrest? शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? Why do you think that peace between nations is necessary?
आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है? एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट। द टॉपिक इज एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट, यानी परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन। जापान faced massive destruction after America dropped two nuclear bombs on the country in 1945। जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए दो परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। That is why the anti-nuclear weapons movement took strong root there। 1954 में अब इसीलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफ़ी सक्रियता से फैला। In 1954, the Japanese people established a unified Japanese Council against atomic and hydrogen bombs। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। They also voiced their protest against the testing of nuclear weapons in some islands in the Pacific Ocean। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। They conducted a signature campaign against these tests, collecting around 35 लाख सिग्नेचर। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। This was the first large-scale anti-nuclear weapons campaign। परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था। इंग्लैंड्स प्रो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट। इंग्लैंड में परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान। Like Japan, England too launched a massive campaign to abolish nuclear weapons in 1958। जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। The Campaign for Nuclear Disarmament (C&D) demanded that England should abstain from any attempt to produce or experiment with nuclear weapons। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। It also demanded that England should abolish all types of nuclear weapons। अभियान ने यह मांग भी की कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। The thousands of activists involved in the movement took out a march from London to the Atomic Weapons Research Establishment in Aldermaston, Berkshire। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एल्डरमास्टन यात्रा निकाली। This march came to be known as the Aldermaston March। अब many such marches were conducted throughout the early years of the 1960s। जैसे आपको क्या हुआ था, एक्चुअल में एल्डरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था और एल्डरमास्टन यात्राएं 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही। The well-known philosopher Bertrand Russell set up a committee of 100
an anti-war group after resigning from his post as CND president. प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमिटी ऑफ 100 का गठन किया। द कमिटी began staging protest in front of England's nuclear establishment. इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। Russell exhorted the people to participate in the sit-in protest, claiming that the English newspapers were lukewarm to the anti-war campaign. रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। His call began attracting thousands of members to the committee of 100 and participate in the protest grew rapidly. शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमिटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। The growing numbers of protesters soon began to have an impact, attracting violent repression by the police and mass arrest. लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफी कम कर दिया। दिस स्टेट रिप्रेशन led to a steady fall in numbers of the campaign's supporters. The arrest of the 89-year-old Russell further dampened the movement because the campaign of 100 had no leadership hierarchy nor was its membership formal. रसेल को 79 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि कमिटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। Many local anti-war groups now began to affiliate themselves with the campaign, helping it to gain widespread support once again. इसीलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। But since they were not fully aware of the campaign objectives, there were many misconceptions about its policies. जैसे आपको मैंने कहा कि बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमिटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगे। द एंटी-वॉर एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट फोकस ऑफ द कमिटी वॉज थस ग्रेजुअली डाइवर्टेड एज इट बिगेन टेकिंग अप मैनी अदर इशूज़। धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे। नाउ द पॉइंट टू बी डिस्कस, चर्चा के लिए यहाँ पे हमारे पास विषय वस्तु है। वाई डू यू थिंक द इंग्लिश पार्लियामेंट कुड नॉट पास अ प्रपोजल टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स? इंग्लैंड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर सकी होगी? हाउ सक्सेसफुल वर द स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स कंडक्टेड बाय द कमिटी ऑफ 100? कमिटी ऑफ 100 द्वारा
किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा। Now, my dear students, the next topic is American Anti-Nuclear Weapons Peace Movement. अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन। Like Japan and England, America also witnessed an important anti-nuclear weapons peace movement in the decade of the 1960s. जापान और इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। At the peak of the Cold War in 1961, American women launched a Women Strike for Peace campaign by marching in 60 US cities. 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था, उस समय अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएं निकाली। Over 50,000 women participated in this massive campaign to demand a nuclear-free world and an end to the Cold War. इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए एक वृहद प्रदर्शन किया। It was the largest political protest in America against nuclear weapons. यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। Subsequently, over 50 US cities observed June 20, 1983 as Nuclear Disarmament Day. 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निःशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। In 1986, hundreds of activists took out a nuclear disarmament march from Los Angeles to Washington DC. 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन तक की पद यात्रा की। They also staged protest at the nuclear weapons testing facility in Nevada in 1980s and 1990s. अमेरिका के परमाणु स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए गए। Thus, America saw a peaceful movement to abolish nuclear weapons that began in the 1960s and continued till the end of the Cold War and achieved some significant objectives. इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफ़ी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। पीस मूवमेंट्स इन अदर कंट्रीज। अन्य देशों में शांति आंदोलन। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज, कनाडा, जर्मनी, इजराइल एंड नॉर्वे वर अमंग सेवरल अदर कंट्रीज टू हैव एक्टिव पीस मूवमेंट्स। उपयुक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजराइल तथा नॉर्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफ़ी सक्रियता से चले। They supported the abolition of nuclear weapons during the Cold War and continued to oppose all kinds of weaponry in the global arms race. शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर तरह के हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया। After the Cold War, they played an active role in limiting and stopping
द अमेरिकन वॉर इन इराक। शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व सीमित करने में काफ़ी सक्रिय रहे। दे आल्सो मेड सस्टेन्ड एफर्ट्स टू स्टॉप इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स सच एज द मिडिल ईस्ट वॉर एंड द सिविल वॉर्स इन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, लीबिया एंड सीरिया। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी। देखिए क्या हुआ कि जैसे आपको मैंने कहा कि शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व सीमित करने में काफ़ी सक्रिय रहे और बाद के कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, खासकर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रुकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे हैं। और यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्धों को रुकवाने के लिए काफ़ी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ इट इज मेंशन व्हाट आई सेड, द लिस्ट ऑफ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस included the Green Party in many European countries, the Canadian Peace Research Association, and Germany's peace campaign to abolish nuclear technology, particularly nuclear weapons. जैसे आपको मैंने कहा अभी कि कई यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्धों को रुकवाने के लिए काफ़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं। These organizations help take the global peace movement forward and were active in preventing international conflicts and war. So my dear students, this is the end of this lesson and this is the end of this video lesson also. We have completed lesson 16. You will get the exercise answers of all the exercise in the PDF form. Complete your work, complete all your assignment and revise your lessons. As the schools have been closed because of the pandemic, when the school will resume, it means it will reopen, we will complete the explanation part again in the classroom. But till then complete your reading, study this lesson, complete all the exercises, prepare your notes and revise all the lessons. I say goodbye to you. See you again in the next video lesson.